کراچی میں بارش ہوئی طوفانی، شہر پھر سے پانی پانی، سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئی، گاڑیاں تنکوں کی طرح بہنے لگیں، کئی علاقوں میں گٹر ابل پڑے، نالے بھی اوور فلو کر گئے، پانی قبرستان اور گھروں میں داخل، بارش کے باعث کرنٹ لگنے سمیت حادثات میں 4 افراد جاں بحق۔ ظفر مرزا کو آئندہ دنوں میں کورونا کیسز دوبارہ بڑھنے کا خدشہ، کہتے ہیں اگر عید پر احتیاط نہ کی تو وبا دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ عوام عید پر اجتماعی قربانی کو فروغ دیں، تفریح اور ملنے ملانے میں احتیاط برتیں۔ اشرافیہ کی خواہش تھی کورونا وبا اتنی بڑھ جائے کہ معیشت ڈوب جائے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے یہی اشرافیہ لاک ڈاؤن کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہی تھی۔ وزیر اعظم نے زندگی اور کاروبار چلانے کی حکمت عملی اختیار کی۔ تانیہ ادرس نے کہا کورونا کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ ڈاکٹر فیصل بولے صورتحال پہلے کی بنسبت بہتر ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت لاہور ماڈل ٹاؤن میں نون لیگ کا اجلاس، عید کے بعد شیڈول اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس پر مشاورت، اے پی سی کے مقام، ایجنڈے اور رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کا امکان۔ اجلاس میں نیب قوانین میں ترمیم کی تجاویز سمیت مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی غور۔ چودھری پرویز الہی کے علماء کرام سے رابطے، تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشاورت، کہا بل کے تحت تمام کتب میں خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لازمی لکھا جائے گا۔ اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صاحبزادیوں، صاحبزادوں، نواسوں اور نواسیوں کے لیے علیہ السلام یا سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ تعالی عنہا یا رضی اللہ تعالی عنہ لازمی لکھا جائے گا۔ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ان کی ناموس پر سب کچھ قربان۔ برطانیہ نے اچانک سے اسپین کو محفوظ ممالک کی فہرست سے نکال دیا، وہاں سے واپس آنے والوں پر 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی لازم۔ حکومتی فیصلے سے 6 لاکھ برطانوی سیاح پھنس گئے، پابندی کو پاگل پن اور مایوس کن قرار دیا گیا۔ اسپین سے واپس آنے والوں پر قرنطینہ کی پابندی کے فیصلے پر قائم ہیں۔ وزیر خارجہ ڈومینک راب کا برطانوی سیاحوں کے اعتراضات پر رد عمل، کہتے ہیں وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے پابندی پر ہر صورت عمل کرنا ہوگا۔ اسکاٹ لینڈ میں برطانیہ کی بڑی سیاسی پارٹی کنزرویٹو نے مسلم فورم بنا کر نئی تاریخ رقم کر دی۔ پارٹی نے متفقہ رائے سے نوید اے رانا کو چیئرمین، رانا راشد محمود کو ڈپٹی چیئرمین منتخب کر لیا۔ ایسٹ لندن میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے فوکل پرسن چودھری آفتاب کی میڈیا ٹاک، کہا پی ٹی آئی کی 2 سالہ حکومت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ برطانیہ میں پارٹی رہنماؤں میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا UAE میں عالمی جریدے خلیج ٹائم کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ خلیج ٹائمز کے مالک سہیل گلادری کا عرب امارات سے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ پاکستان میں سیاحت میں سرمایہ کاری کی خواہش کا بھی اظہار۔ ممتاز شاعر پروفیسر عنایت علی خان انتقال کر گئے۔ پروفیسر عنایت علی خان نے کئی کتب لکھیں، مزاحیہ شاعری سے شہرت حاصل کی، مسلم سائنس کالج میں شعبہ اردو کے سربراہ بھی رہے۔ 5 سال قبل حیدرآباد سے کراچی منتقل ہوئے، کچھ عرصے سے علیل تھے۔ اور شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے بیٹے اذہان مرزا ملک کے ڈانس کی دلچسپ ویڈیو وائرل، صارفین کی جانب سے اذہان کی ویڈیو کو بہت پسند کیا جا رہا ہے۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूँ यासिर रशीद और मैं हूँ आपके साथ राफिया आवान। बुलेटिन में खुश आमदीद नाजरीन। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। पाक फौज ने पौंछ सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। भारतीय क्वाडकॉप्टर LOC पर पाकिस्तानी इलाके में 200 मीटर तक घुस आया था। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भारतीय फोर्सेस की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी है। भारत इश्तियाल अंगेजियों और जासूसी से बाज नहीं आया और एक बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी है। पाक फौज ने पौंछ सेक्टर में भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया है। पाक फौज ने रवां बरस भारत का ये 10वां जासूस ड्रोन मार गिराया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी की आला क़यादत का इजलास हुआ, जिसमें ईद के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और एजेंडे पर हतमी मुशावरत की गई। मज़ीद तफसीलात के लिए आप देखिए लाहौर से मियां शाहिद नदीम की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ फिर से मुतहरिक। मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पर पार्टी की आला क़यादत का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर हुसैन, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब और खुरम दस्तगीर और दीगर ने शिरकत की। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में ईद के बाद होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और एजेंडे पर हतमी मुशावरत की गई। इजलास में दीगर इत्तेहादी अपोजिशन जमातों से राब्तों के लिए कमेटी तश्कील देने पर भी गौर किया गया। इजलास में नैब कवानीन में तरमीम की तजावीज़ समेत मजमूई मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया गया। इजलास में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एजेंडा तैयार करने और दीगर अमूर के लिए बनाई जाने वाली रहबर कमेटी के लिए लीगी रहनुमाओं के नामों पर भी मुशावरत की गई। मियां शाहिद नदीम, 92 न्यूज़, लाहौर। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि हमारे या हमारी नस्लों के होते हुए खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत और अतहार और असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम से टेलीफोनिक रब्ता किया और तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की। ताला का बेहद शुक्र अदा करता हूँ जिसके फजल व करम से आज तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल मंजूर हुआ, जो कि एक तारीख़ी बिल है। ये बिल दीन इस्लाम की हिफाजत और सरबलंदी के लिए इंशाअल्लाह संग मील साबित होगा। चौधरी परवेज इलाही की तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर उलमाए कराम से टेलीफोनिक मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अल्लामा साजिद नकवी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, मुफ्ती राग़िब नईमी, पीर अमीनुल हसनात, अल्लामा रियाज हुसैन नजफी, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई, सैयद सिब्तैन हैदर सब्ज़वारी, सैयद सफ़दर शाह से रब्ता किया। साबिक MPA सैयद तकलीद रज़ा शाह तलागंग और अल्लामा गुलफाम हाशमी से भी तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर मुशावरत की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल के तहत तमाम कुतुब में खातिमुन नबीयीन हजरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी लिखा जाएगा। अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, साहबजादों, साहबजादियों, नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा या रज़ियल्लाह अन्हो या रज़ियल्लाह अन्हा लाज़मी लिखा जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा, अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है और उनकी नामूस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। अहले बैत अतहार और तमाम सहाबा के गुलाम हैं और ये उनसे इश्क का अमली सबूत है कि तमाम अरकान असम्बली ने वो कुतुब जब्त करने का हुक्म दिया जिसमें अहले बैत अतहार की शान में गुस्ताखी की गई थी। स्पीकर पंजाब असम्बली का मजीद कहना था, हमारे या हमारी नस्लों के होते हुए खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मोमिनीन, अहले बैत अतहार और असहाबे रसूल रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती। तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल से तमाम मसालिक के दरमियान इत्तेहाद व प्यार मजीद मजबूत होगा। भारत खत्ते में अमन के लिए ख़तरा बनता जा रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, खत्ते के दूसरे ममालिक भी महसूस कर रहे हैं। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम 92 at 8 में गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा आयशा फारूकी का कहना था कि भारत का मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ किरदार किसी से ढका छुपा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर जाएगा। अफगान अमन अमल को आगे बढ़ाने में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। अफ़गान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में और उसको फैसिलिटेट करने में पाकिस्तान का जो किरदार रहा है उसकी दुनिया ने तायीद की है।
रिसेंटली स्पेशल एनवॉय यूएस के ज़ल्मी खलीलज़ाद, उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने हो। दुनिया का कोई और मुल्क इससे ज़्यादा ख़्वाह नहीं है जितना पाकिस्तान है कि अमन अफ़गानिस्तान में कायम हो और इस पूरे ख़ित्ते में जो पीस एंड डेवलपमेंट के हम सब के अज़ाइम है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। अफ़गानिस्तान में जो डायलॉग का सिलसिला है वो भी आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ये प्रोपेगेंडा जो है ये ख़ुद अपनी मौत ख़त्म हो जाएगा। भारत जो है वो ख़ित्ते में पीस एंड डेवलपमेंट के लिए ख़तरा बनता जा रहा है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान महसूस कर रहा है बल्कि ख़ित्ते के दूसरे ममालिक भी इसकी जो तपिश है वो महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में जो भारत का किरदार रहा है हमारे ख़िलाफ़, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। ईद पर पंजाब की मार्केट्स बंद किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने चीफ सेक्रेटरी को सूबे भर की मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ पेश कर दी है। मार्केट्स किस दिन बंद होंगी और कितने दिन बंद रखने की तजवीज़ पेश की गई है, जानते हैं सुलेमान चौधरी की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के फैलाव के खतरात के पेश नजर मार्केट्स बंद करने पर गौर। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत पंजाब ने ईद से कबल मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में मंगल या बुध से सूबे भर की मार्केट्स बंद करने की तजवीज़ पेश की गई। ज़राए ने बताया महकमा सेहत की जानिब से 2 अगस्त तक तमाम मार्केट्स बंद रखने की तजवीज़ पेश की गई। इस दौरान ग्रोसरी, फार्मेसीज, बेकरीज, दूध, दही और दीगर जरूरी अशिया की दुकानों को काम की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से बेशतर शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। सूबाई दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिसके मुस्बत नताइज सामने आए। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़, लाहौर। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कहते हैं बातें बहुत हो चुकी, आवाम को रिलीफ देने के लिए काम किया जाए, मुझे हर सूरत नताइज चाहिए। शाहिद चौधरी ने रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। पंजाब में मुनाफाखोरों की शामत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सख्त कार्रवाई की हदायत कर दी। कहते हैं बातें बहुत हो चुकी, आवाम को रिलीफ देने के लिए काम किया जाए, मुझे हर सूरत नताइज चाहिए। आटे, चीनी समेत अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए हर इंतजामी इकदाम उठाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कीमतों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नाजायज मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस भिजवाई जाए। अवाम को मसनूई महंगाई पैदा करने वालों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। ज़ख़ीरा अंदोजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके स्टॉक जब्त कर लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं लाहौरियों की सहूलत के लिए मुतअद्दिद मेगा मंसूबों पर काम जारी है। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाएंगे, जिसमें इलाज मुआलजे की जदीद सहूलियात मुयस्सर होंगी। बारिश के पानी को महफूज करने के लिए लाहौर में मुल्क का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बनाया जा रहा है। ईद उल अज़हा से कबल मुनाफाखोरों ने शहरियों पर छुरी चला दी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में सब्ज़, मसाला जात और सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा हो गया है। ईद उल अजहा से कबल महंगाई की छुरियां तेज, मुनाफाखोरों ने शहरियों की जेब काटना शुरू कर दी। कुर्बानी का गोश्त खाना है तो तैयार करने के लिए जेब की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। मुख्तलिफ शहरों में सब्ज मसाला जात की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में टमाटर सरकारी नर्ख से 40 रुपए ज्यादा फरोख्त हो रहा है। लहसुन 180 के बजाय 240 रुपए, जबकि 395 रुपए की सरकारी कीमत वाला अदरक 450 रुपए में बिक रहा है। कीमतों में इजाफे ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इस बात की। शाम को कुछ और रेट होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, फिर दोपहर को कुछ और रेट होते हैं, इस तरह कोई समझ ही नहीं आ रहे। कोरोना की वजह से सारे मामला आपके सामने है, उसके बाद अगर महंगाई हो तो हर कोई परेशान ही होगा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सब्जी मंडियों में भी महंगाई का तूफान उमड़ आया। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, लीमू और आलू की कीमतों को पर लग गए। टमाटर 100 रुपए, प्याज 50, अदरक 400, लीमू 200, लहसुन 150 और सब्ज मिर्च 200 रुपए किलो हो गई है। जिनकी डेली इनकम पे गुजारा चल रहा है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो बाकी ये है कि आप क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हुकूमत को सोचना चाहिए। किसी के पास भी कोई मुनासिब रेट का रेट लिस्ट नहीं है, आवाम परेशान है।
ایک کے پاس جائیں کچھ ریٹ ہے, دوسرے کے پاس جائیں کچھ ریٹ ہے. گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے, کوئی ریلیف دینا چاہیے, کوئی ایسے بازار لگانے چاہیے کہ غریب عوام کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ریلیف ملے. تو آج کل میں کہتی ہوں امیروں کے لیے بھی شاید پاسبل نہیں رہا کہ اس طرح مینیج کر سکے. آٹا ہماری سطح سے باہر چلا گیا, ٹھیک ہے, دال, سبزی, نمک, ہر چیز ہماری سطح سے باہر چلی گئی. کراچی, پشاور, ملتان, کوئٹہ اور دیگر شہروں میں بھی سبزیوں اور خاص طور پر سبز مسالہ جات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا. شہری کہتے ہیں پرائس کنٹرول کمیٹیاں اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں. کووڈ-19 کے بعد پہلی انسداد پولیو مہم اختتام پذیر. ملک بھر میں 7,67,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی. خصوصی انسداد پولیو مہم 5 مخصوص اضلاع میں جاری ہے. اسلام آباد سے حسین احمد کی یہ رپورٹ. پولیو کو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم. 20 جولائی سے شروع ہونے والی انسداد پولیو مہم گزشتہ روز 25 جولائی کو اختتام پذیر. نیشنل کوآرڈینیٹر انسداد پولیو پروگرام ڈاکٹر صفدر رانا کے مطابق ملک میں 4 ماہ کے وقفے کے بعد 20 جولائی کو انسداد پولیو مہم کا از سر نو آغاز کیا گیا. خصوصی انسداد پولیو مہم 4 صوبوں میں جاری رہی. پولیو مہم 5 مخصوص اضلاع کراچی, کوئٹہ, فیصل آباد, اٹک اور جنوبی وزیرستان میں جاری رہی. پولیو مہم کے دوران 7,67,000 بچوں کو ویکسین پلائی گئی. ڈاکٹر صفدر کا کہنا ہے کہ کراچی کی 23 اور کوئٹہ کی 10 یونین کونسلوں میں پولیو مہم جاری ہے. ڈاکٹر رانا صفدر کا کہنا ہے کہ فیصل آباد کی 55 یونین کونسلوں میں مہم جاری رہی. پولیو مہم میں 5 لاکھ سے کم عمر 8 لاکھ بچوں کی ویکسینیشن ہوئی. انسداد پولیو مہم میں 8,000 کے قریب اہلکار تعینات رہیں گے. انسداد پولیو مہم کے لیے سیکورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے تھے. پولیو مہم کی ٹیموں کو بھرپور سیکورٹی فراہم کی گئی ہے. ڈاکٹر صفدر رانا کہتے ہیں پولیو ویکسین بچے کی عمر بھر کی معذوری سے بچاؤ کا واحد حل ہے. والدین انسداد پولیو ٹیموں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. کورونا کے باعث 13 سال مارچ میں پولیو مہم معطل ہوئی تھی, جس کے بعد ابتدائی مرحلہ مکمل ہو چکا ہے. حسین احمد, 92 نیوز, اسلام آباد. بلٹن میں یہاں شامل کریں گے ایک بریک. آپ رہیے 92 نیوز UK کے ساتھ. برطانیہ نے اجائل اسپین کو محفوظ ممالک کی فہرست سے نکال دیا ہے. کورونا کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وہاں سے واپس آنے والوں پر 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ کی پابندی لازمی قرار دے دی. حکومتی فیصلے پر اسپین میں موجود برطانوی سیاحوں نے برہمی کا اظہار کیا ہے. پابندی کو پاگل پن اور مایوس کن قرار دے دیا ہے. رپورٹ میں جانیے. اسپین سے آنے والوں کے لیے بھی 2 ہفتے کے لیے قرنطینہ لازمی قرار. برطانوی حکومت کے اچانک کیے گئے فیصلے پر برطانوی سیاح بوکھلا کر رہ گئے. برطانوی حکومت کے اس فیصلے سے جہاں اسپین کی سیاحتی صنعت کو نقصان پہنچا ہے, وہیں برطانوی شہریوں کے چھٹیاں گزارنے کے کئی منصوبے بھی چوپٹ ہو گئے. لندن کے رہائشی رچ لیمبرٹ کا کہنا ہے کہ وہ بارسلونا سے اپنے ملک واپسی کے لیے روانہ ہونے ہی والے تھے جب انہیں پتہ چلا کہ برطانیہ میں انہیں 2 ہفتوں کے لیے قرنطینہ میں جانا پڑے گا. دیگر شہریوں نے بھی اس فیصلے پر خفگی کا اظہار کیا ہے. Seems a bit crazy to be imposing quarantine, in those circumstances. Especially when the UK have got, big spate of infections still, and they have I think Spain is handling it better than the UK at the moment. So. Yeah, I would be more concerned about catching coronavirus in London than in Spain. Since the number of cases here in Spain are rising, I think it's probably a sensible measure, and I was expecting it, to be honest. Maybe it caught me by surprise because it was just yesterday, one day before I'm flying. But I think it's a right measure, yes. It feels safer here than it does in England, if I'm honest. But there we go. That's our government for you. That seems to be the way they're doing it. They rule by what the media say, and to be honest, it's been quiet here. You can see the airport's empty, and there's going to be no tourists coming now. So it's all a bit last minute. In terms of a necessary measure, it may well be. It's one of those risks that you took, and with the case number increasing in Spain itself, then I think it's probably a necessary measure. برطانوی حکومت نے پہلے اسپین کو محفوظ ملکوں کی فہرست میں شامل کرتے ہوئے وہاں سے آنے والوں کو قرنطینہ کی پابندی سے مستثنا قرار دیا تھا. تاہم آخری وقت میں لندن حکومت نے سیاحوں کو کوئی مہلت دیے بغیر ہی اسپین کو محفوظ ممالک کی فہرست سے نکال دیا. وزیر خارجہ ڈومینک راب کا اسپین میں موجود برطانوی سیاحوں کے اعتراضات پر رد عمل آ گیا. کہتے ہیں کہ وہ اسپین سے
वापस आने वालों को करंतना में भेजने के फैसले पर कायम है। वायरस का फैलाव रोकने के लिए हर सूरत इस पाबंदी पर अमल करना होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये देखते हैं। We've always said that we keep the travel advice under constant review, and that as we eased our way through lockdown, we would still have to make targeted interventions. This is absolutely crucial. We're taking this in a targeted, decisive and focused way. We appreciate the disruption for travellers. Anyone that's risks losing money needs to go and talk to their travel operator and look at their insurance. But we must take these measures to avoid the risk of reinfection into the UK, given the very serious spike in cases in Spain. मौसम सरमा में कोरोना की मुमकिना लहर से बचाव के लिए इंग्लैंड में रवां बरस तारीख की सबसे बड़ी फ्लू वैक्सीन की मुहिम चलाई जाएगी। इस दौरान 3 करोड़ से ज्यादा अफराद को फ्लू का टीका लगाया जाएगा। ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट देखिए। इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस की जानिब से मौसम सरमा से कबल 50 बरस से जायद उम्र के अफराद को फ्लू का टीका लगाया जाता है, लेकिन इस साल इन अफराद को भी इंजेक्शन लगेगा जो शील्डिंग लिस्ट में शामिल हैं। सेकेंडरी स्कूल के तलबा समेत मजमूई तौर पर 3 करोड़ से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी फ्लू वैक्सीन लगाने के हवाले से मंसूबे का ऐलान नहीं किया गया। माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस और फ्लू एक ही वक्त में होने से मुहलक असरात मुरतब हो सकते हैं और मरीज की जान भी जा सकती है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम सितंबर से शुरू होगा। NHS अहल लोगों से खुद रब्ता करेगा, जिनमें इंतहाई ज़रूरत वाले अफराद सरे फहरिस्त होंगे। हेल्थ सेक्रेटरी मेट हैनकॉक के मुताबिक ये बरतानिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मौसम सरमा में NHS को दबाव से बचाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। गुलाम हुसैन नवान, 92 न्यूज़, लंदन। स्कॉटलैंड में बरतानिया की बड़ी सियासी पार्टी कंजर्वेटिव ने पहली बार मुस्लिम फोरम बनाकर नई तारीख रकम कर डाली है। पार्टी ने मुत्तफिका राय से नवीद राना को चेयरमैन, राना राशिद महमूद को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया है। तफसीलात के लिए देखिए शाहिद मीर की रिपोर्ट। ग्लासगो में हुकूमती टोरी पार्टी के ज़ेर एहतमाम पुरतकल्लुफ़ इशाइये का एहतमाम हुआ, जिसमें कंजर्वेटिव पार्टी ने पहली बार मुस्लिम फोरम बनाकर नई तारीख रकम कर दी। तकरीब में बैरोनेस नौशीना मुबारक, कौंसलर ओन ब्लोकले और डार रायडी समेत नुमाया शख्सियात शरीक हुई। इजलास में पार्टी ने मुतफिका राय से नवीद राना को चेयरमैन, राना राशिद महमूद को डिप्टी चेयरमैन मुंतखब कर लिया। बैरोनेस मुबारक मुस्लिम फोरम स्कॉटलैंड के चेयरमैन और दीगर ने कहा, मुसलमानों को बरतानिया की सियासी पार्टियों में हिस्सा लेकर अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, टोरी पार्टी से मुतालिक मन घड़त बातें फैलाई गई हैं कि हमारी पार्टी मुसलमानों के हक में बेहतर नहीं है, हालांकि हमारी जमात कम्युनिटी की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां है। कोरोना लॉकडाउन के बाद होने वाली मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटी की इस सबसे बड़ी तकरीब के शुरका के लिए ज़ियाफत का भी एहतमाम किया गया। आज स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में कंजर्वेटिव पार्टी के एहतमाम पहली दफ़ा मुस्लिम फोरम की बुनियाद रखी गई, जिसके सदर के तौर पे, जिसके ऑर्गेनाइजर के तौर पे नवीद राना को यहाँ पे मुंतखब किया गया, जिसे मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज़्यादा सराहा। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बरतानिया में फोकल पर्सन चौधरी आफ्ताब ने कहा है कि PTI की 2 साला हुकूमत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़ान है। सेहत, तालीम, सयाहत और दीगर शोबों में मुल्क तरक्की कर रहा है। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के बरतानिया में फोकल पर्सन चौधरी आफ्ताब की ईस्ट लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान की 2 साल कारकर्दगी सबके सामने है। 2 साल के दौरान मुल्क की बुनियादों को मजबूत किया। न्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुल्क की तामीराती सन्नत में इनकलाब आ रहा है। लास्ट 2 ईयर के अंदर उस्मान बुज़दार साहब ने तमाम सेक्टर्स को यकसा ऊपर लेके आए हैं, जिसमें से हेल्थ रिफॉर्म्स हैं, उसके बाद एजुकेशन रिफॉर्म है, उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स हैं। इसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है। फिर ये कोरोना के अंदर जो है उसमें बहुत ज़्यादा काम हुआ। कोरोना के अंदर जो इस वक्त जो है कि पंजाब जो है सबसे लीडर बन के आया। उन्होंने इस वक्त पूरे पंजाब में कोरोना कंट्रोल हो गया है। फिर सबसे बड़े जो हमारे प्रोजेक्ट हैं उसमें जेलम कैनाल प्रोजेक्ट है और थाल कैनाल प्रोजेक्ट है, वो हमारे अगले 1-2 सालों के अंदर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे। उसमें लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो सैराब होगी। फिर यह है कि न्यू लाहौर सिटी का प्रोजेक्ट है। न्यू लाहौर सिटी के अंदर 1 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जगह के ऊपर एक नया शहर बसाया जा रहा है और वो एक शहर दुबई की तरह का या दुनिया के जदीद शहरों की तरह के ऊपर बसाया जाएगा। इस मौका पर PTI ईस्ट लंदन के सदर सैफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान में -1 की अफवाहें दम तोड़ जाएंगी। इमरान खान की सूरत में पाकिस्तान को हकीकी मानों में एक हकीकी लीडर मिल गया। इससे ये होगा कि एक ब्रिज बन गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों का CM पंजाब तक। जिनको जो मसाइल होंगे वो फोकल पर्सन साहब को बताएंगे। यहाँ पे आफ्ताब चौधरी साहब उनको यहाँ पे जो उनकी कंप्लेंट्स होंगे उनको हैंडल करेंगे और हमारी जो कंप्लेंट्स होगी, मामला चल रहे होंगे, हमें जो मुश्किलात पेश आती है वो CM पंजाब तक पहुँचाएंगे। PTI are doing a wonderful job and I think they will continue, but it's going to be a struggle after many years of the country being run down.
thing is, correct what they're doing, and it will take time. So we are expecting them to do something good in the next few years of their lifetime, and hoping that they were going to do a lot for the overseas Pakistanis as well. मैं यहाँ पे आफ्ताब साहब जो फोकल पर्सन बने हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब के, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ओवरसीज़ के बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं और हमें यहाँ पे आफ्ताब साहब की शक्ल में एक ऐसा नुमाइंदा मिल गया है कि हम डायरेक्टली उनके साथ यहाँ पे मिल सकते हैं और हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको हम आसानी यानी हल करा सकते हैं। आफ्ताब साहब को जो इनको जिम्मेदारियाँ मिली हैं उनके सिलसिले में आज हमने एक छोटी सी गेट टुगेदर रखी थी और हम उम्मीद करते हैं कि जो जिम्मेदारी इनको दी गई है अल्लाह ताला इनको ये जिम्मेदाएँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट को बनाने में, और उनका हक भी बनता है कि उनके तमाम मसाइल फाइनेंशियल या उनके जो जितने भी मसाइल हैं पाकिस्तान में उन सबको हल करवाया जाए। PTI रहनुमाओं ने कहा बरतानिया में पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। ब्रिटिश रॉयल नेवी की पाकिस्तानी नजाद दुर्दाना अंसारी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून एजाजी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, जो मुल्क बरतानिया से ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। वो इन दिनों ब्रिटिश एशियंस बच्चों को नेवी में लाने की मुहिम में मसरूफ़ अमल है। कोरोना वायरस के दौरान ये उनका पहला दौरा बर्मिंघम था, जहां उन्होंने नौजवानों से मुलाकात की और क्रिकेट क्लब के प्रोग्राम में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बर्मिंघम में नुमाइंदा 92 न्यूज़ आबिद काज़मी से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज यहाँ आने का मकसद मेरा था कि बर्मिंघम क्रिकेट पार्क लीग की तरफ से बहुत सारी टीमें थी जो यहाँ एक मेन पार्क है उसमें सब जमा हुए, जहाँ काउंसिल ने बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर तरह के बैकग्राउंड से लोग जो हैं वो वहाँ आए हुए थे, और अपना ये कोविड-19 की वजह से जो इस वक्त हर आदमी मेरा ख्याल में परेशान हो गया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो हुकूमत इसमें थोड़ी सी आसानियाँ कर रही है, उसके तहत ये आज यहाँ सब जमा हुए थे। और मेरा मकसद इसलिए था कि उन्होंने मुझे आज वहाँ बुलाया था कि उन्होंने ये, चूँकि उनकी शुरुआत है मैचेस की, तो वहाँ वो रॉयल नेवी के बारे में जानना चाहते थे कि क्या कौन सी ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो उनके लिए हैं, और 18 से 35 साल के लोगों के लिए किस तरह से उसमें, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं, आपको चाहिए कि मेन स्ट्रीम में भी आके काम करें। तो मेन स्ट्रीम में के आने का मकसद आपको दुनिया की अवेयरनेस होगी, आपका अच्छा करियर बनेगा। कोविड-19 के ज़रिए देखिए इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, कंपनीज़ बंद हो रही हैं, तो यहाँ अगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आएँ, उनको देखें, अगर आपको सूट करती हैं तो आइए और ज्वाइन कीजिए और यूनिफॉर्म पहनिए और अच्छा लगेगा। यू विल बी प्राउड, योर फैमिली विल बी प्राउड। जो ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान हैं खुसूसन उनकी तरफ से किस कदर रिस्पॉन्स है कि नेवी में दिलचस्पी ले रहे हैं या नहीं? देखिए हर तरह के लोग हर तरह के होते हैं, चाहे वो यहाँ रहने वाले हों या पाकिस्तान से हों या कोई भी इंडस्ट्री हो, जब वो देखते हैं कि उनके लिए कौन सी ऐसी चीज़ें उनको एक तो पहले पता नहीं है, जब किसी चीज़ का आपको इल्म ना हो तो वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब हम आके उनको बताते हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर उनको ख्याल आता है अच्छा, वरना उनके जहन में ये आता है कि ये तो कहीं हमें इस तरह से भर्ती करके ले जाएंगे और कहीं सरहद पे ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो मैं इसमें शामिल ना होती। इसलिए आप आइए, देखें और आके इन बच्चों से बड़े, बल्कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सीखने के लिए मिलता है, इनकी सोच का पता चलता है कि ये लोग क्या चाहते हैं और क्या अगर जो इनकी सोच है क्या वो वाकई आगे तक पहुंच रही है, या जो वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं रॉयल नेवी में जहाँ मैं काम करती हूँ उनको भी पैगाम उनको मिलेगा कि नहीं। तो वो मेरे ज़रिए मैं एक पुल हूँ इनके दरमियान और कम्युनिटीज़ के दरमियान, कि कम से कम इनकी बात जो है, जो वो कहते हैं कि हमें इनके माइंडसेट्स को समझना है, तो मैं उनकी राह हूँ कि उनको बताने के लिए, क्योंकि मुझे खुद भी इल्म है कि हमारी कम्युनिटी क्या चाहती है। तो बच्चे बहुत अच्छी, बहुत मुस्बत बात करते हैं, बड़ी ठोस बात करते हैं। मैं रॉयल नेवी से भी ये कहती हूँ और अपने आर्म फोर्सेस से कहती हूँ कि देखिए इनकी पोटेंशियल्स को आप बिल्कुल ऐसा मत समझिए कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है, बहुत कुछ पता है, बस दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं। कौन कौन से शोबे हैं जिसमें ज़्यादातर ज़रूरत है कि नौजवान वहाँ जाएं, खुसूसन हमारे नौजवान किस में अहम किरदार अदा कर सकते हैं?
देखिए सैकड़ों किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं एक का नाम मतलब मैं अगर वाज़ेह तौर पे बताऊं कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, आप पायलट बन सकते हैं, नेवी में रह के भी आप जहाज़ और हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो डेस्क जॉब हैं, शेफ़ बन सकते हैं। मतलब बिल्कुल इतनी ज़्यादा लिस्ट है कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। लेकिन मैं इन लोगों को दावत दूंगी कि आप लोग आइए, मालूमात कीजिए, और जो आपके जहन में सवाल हैं वो आप कीजिए और क्लैरिफाई कीजिए अपना, ताकि जहन आपका मुतमईन हो कि जिस चीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं और आप जाना चाहते हैं तो आप जो हैं वो कोई आपको खुदा ना करे कोई धोखा नहीं दे रहा है। जहन में ये ना हो आपके कि किसी तरह से कोई खाली मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा मैं नहीं समझती कि ऐसा है। बरतानिया भर की तरह वॉल्सल की मसाजिद में भी नमाज जुमा और दीगर नमाजें समाजी फासले के तहत अदा की जा रही हैं, जिसमें कम्युनिटी भरपूर ताउन कर रही है। वासल की जामिया वर्चुअल मस्जिद में हुकूमती अहकामात के तहत 5 नमाजों के साथ साथ नमाज जुम्मा भी अदा की जा रही है, जिसमें लोगों की जानिब से भरपूर ताउन किया जा रहा है। नमाजी घर से वुजू करके आते हैं। जब नमाजी मस्जिद के अहाते में दाखिल होते हैं तो पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है, जिसके बाद उनको अंदर दाखिले की इजाज़त दी जाती है। We are appealing for our building project for Jamia Masjid Ghosia, the two-story construction, also refurbishment of Fatima Zahra Centre and the new COVID Ghusl facility. We are carrying out a special Eid dessert sale. All funds will go towards the renovation, rebuild and new construction of the masjid. जुमात मुबारका की अदायगी यहाँ पर फील्ड में अदा हुई है। माशाअल्लाह लोगों ने बहुत अच्छी तरह ताउन पेश किया है। हमने खुले आसमान के तले इस फर्श ज़मीन पर अल्लाह की बारगाह में सजा रिज़ी का शरफ़ हासिल किया है। हालात के पेश नज़र हमारी लोकल कम्युनिटी ने बड़ा ताउन पेश किया है। Hope everyone's in the best of health and iman. Alhamdulillah, as you can see, the Jamia Ghosia Masjid has made this beautiful initiative of keeping, we have access to this field right next to the masjid in which we are able to perform our Salatul Jum'ah and inshallah Salatul Eid as well. बहुत अच्छा माहौल रहा है आज वॉल्सल जामिया मस्जिद गौसिया विच कम से कम तकरीबन 300 ने कोल कल बंदे जुमा सोशल डिस्टेंसिंग पढ़िया माशाल्लाह जी साड़ी मौजूदा कमेटी है, they're doing a wonderful job. Facilitated prayers outside, so Jummah prayers for the last 2 weeks have actually been outside. And mashallah, we've had excellent attendance, and all with the protection and social distancing measures that the government guidelines. जुम्मे के रोज़ खुले आसमान तले आज़ान दी जाती है और फिर नमाजी इमाम मस्जिद मौलाना हारून रशीद की इमामत में नमाज अदा करते हैं। रूस की रियासत वोल्गाग्राद के शहर वोल्स्की में बैतुल मक़दस की एक मस्जिद की तर्ज और डिज़ाइन जैसी मस्जिद की तामीर का काम जारी है। इस मस्जिद की तामीर पर तकरीबन $10 लाख खर्च होंगे। तफसीलात शाहिद घुम्मन। ये मस्जिद मुसलमानों की सबसे बड़ी मस्जिद और सकाफती मरकज में शुमार होगी। मस्जिद में एक बड़ा हॉल बनाया जाएगा जिसमें 1000 नमाजियों की गुंजाइश होगी। एक कॉन्फ्रेंस हॉल, म्यूजियम, लाइब्रेरी, तालीमी अमूर के लिए क्लासेस और एक ज़ेरे ज़मीन हॉल शामिल है जहाँ मजहबी तकरीबात मुनक्कद हो सकते हैं और यहाँ पर बेक वक्त 4000 नमाजी नमाज अदा कर सकेंगे। शाहिद घुम्मन, नाइट न्यूज़, रूस। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बरतानवी होम ऑफिस ने आर्टिस्ट मरियम एस्कोफिट के बनाए मलिका एलिज़ाबेथ के पोर्ट्रेट की ऑनलाइन रुनमाई की। पोर्ट्रेट की ऑनलाइन रुनमाई में मलिका एलिज़ाबेथ ने भी शिरकत की। मलिका एलिज़ाबेथ ने कहा है कि पोर्ट्रेट को देखकर बहुत खुशी हो रही है। उम्मीद है एक दिन इसको हकीकत में भी देख सकूंगी। Majesty's permission, Miriam and I will unveil a picture of Your Majesty. Very well, that's very good. Well, that's very glad. Well, I'm glad to have been able to do this morning. Very nice to see everybody. I'm very impressed. और इसी के साथ बुलेटिन में शामिल अहम खबरें आप जान चुके हैं। मज़ीद बाखबर रहना हो तो देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।